So yesterday's class we discussed about Coulomb's law, and in Coulomb's law we discussed about what does it is. It gives the value of force acting between 2 point charges placed at some distance apart. F is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught k q1 q2 upon r square. K is a dielectric constant. We can represent also write k with epsilon r, relative permittivity of a medium. Epsilon was the permittivity of free space. We did some numericals related to it. Some questions can also be asked from Coulomb's law कि एक 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज है किसी बॉडी पर, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, बताओ कितना फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव होगा रिपल्सिव होगा. आपको ये सारे क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए. उसके बाद कल मैंने जो क्लास ली, आई डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. सो लेट अस नाउ हैव अ लुक एट अगेन व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट, I should minimize the sound of my tablet. It would create some disturbance. For example, if you are having a source charge Q, some space around a source charge in which any other test charge experiences a force of attraction or a repulsion, this region is called electric field. So the value of electric field can be determined by two ways. One is the intensity of electric field. Another one is the potential, electric potential. I'm again repeating. See, one interesting concept. A body exerts a gravitational pull on another body. What is necessary? That, for example, if you are having this cap, if I release this cap comes to the earth by what? Due to the gravitational pull of the earth. Clear? There is earth which has created one field called gravitational field. Right? Similar way, there is a charge which has created a field around it, under influence of which if you take another charge, it will either come close to this charge if it is opposite charges, otherwise it will go away from this charge, means a repulsion force is there if the charges polarities are same. So two-step process necessary. There has to be a field. Field is created by one source charge. There has to be some field so that another charge experiences a force. Yeah. Always remember this is a very small amount of charge, and that is why it is known as test charge. अगर मान लीजिए ये चार्ज इतना स्ट्रांग है कि वो इस वाले चार्ज को भी डिस्प्लेस कर दे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिस्प्लेस हो जाएगा. तो हमको ये याद रखना है कि ये जो दैट द टेस्ट चार्ज वी आर यूजिंग, टेस्टर बोला ना, टेस्ट which is having very small magnitude, it does not changes the field of the source charge. So now let us have a look at what are the properties of electric field and what are electric lines of force. Lines of force सिंपल एक ये पॉइंट था कि सिंपल सी बात ये है कि अगर आप किसी चार्ज को यहाँ रखते हैं तो इस पे किसी एक डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यहाँ रखा एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय सम इमेजिनरी लाइंस. Electric field is represented by some imaginary lines. Let us suppose these are some imaginary lines. And these lines are called electric lines of force or electric field lines. Clear? If you draw a tangent at any point on electric field line, it will give you the direction of force. कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व्ड है, योर चार्ज इज बीइंग प्लेस्ड एट हियर, मतलब ये कोई सोर्स चार्ज था प्लस क्यू, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्ड थी, स्ट्रेट नहीं है. आप कोई टेस्ट चार्ज यहां लेकर आते हैं, अब आपको ये पता करना है कि इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा. द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी the direction of tangent drawn at that point. Here, if you take some charge at here, the direction will be the direction of tangent drawn at a point here. So electric field lines gives you the direction of force which would act on a test charge. That is why these electric lines, field lines, are known as
electric lines of force. They are also known as electric lines of force. I hope it is clear to you. This picture we have discussed in the last class, right? Now I'm coming to the point. यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? Is it clear? Yes, sir. Okay. Listen. Electric field lines का behavior कैसा होगा? Due to a positive charge, they tends to move outward always. Negative charge is having electric field lines always pointing inward. Electric lines for force tends to go at center, represented by straight lines, for a single isolated charge. For a positive charge, the electric lines of force goes outward. They are all straight. Can anybody tell कि straight से क्यों represent किया? इसलिए represent किया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया था, एक टेस्ट चार्ज यूज किया था और टेस्ट चार्ज का डायरेक्शन बता रहा था कि किस डायरेक्शन में वो जो जा रहा था ना, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ की। यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ की गई, ये टेस्ट चार्ज को इधर 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 हर जगह रख रख के देखा और जिस जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था उस इस डायरेक्शन में हम समझ गए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, और देखा कि एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट होती हैं एंड दे टेंड्स टू गो रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, एक सर्किल खींचेंगे तो सारी रेडियस है, तो रेडियली आउटवर्ड जा रही हैं। आउटवर्ड इसलिए क्योंकि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, सो आउटवर्ड। यहां अगर टेस्ट चार्ज रखता हूं तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन, द टेस्ट चार्ज टेंड्स टू मूव inward, hence all the electric lines of force for a negative charge are radially inward. Remember these two terms, key electric field lines radially outward and radially inward for a positive and negative charge. Now what are the electric field lines? Due to two positive charge placed at some distance apart. So you have to all draw it from book, or you can draw it from recordings which I'll post very soon. Let us suppose this is one positive charge, this is another positive charge. Now see, if you are having अब now you want to draw कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैटर्न आप लिख सकते हैं हेडिंग। तो पैटर्न कैसा होगा, आप यहाँ टेस्ट चार्ज रखेंगे, यहाँ 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 हर जगह टेस्ट चार्ज रख के देखेंगे, टेस्ट चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा वो डायरेक्शन हमको बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा है। इज इट क्लियर? सो बेटा लिसन, अच्छा एक बात मुझे कोई भी स्टूडेंट बताए, अगर मैं टेस्ट चार्ज यहाँ रखता हूँ अपना क्यू नॉट, तो वो कहाँ मूव करेगा? कोई भी जल्दी से मुझे कमेंट बोल करके बताओ, अनम्यूट करके। सर अपोजिट मूव करेगा, मतलब लेफ्ट साइड में। इधर रखूंगा तो इधर राइट साइड में जाएगा। इधर राइट साइड में जाएगा, मुझे पता लग गया। तो इसका मतलब ना मैं इनको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, इनको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हो सकता है ये ऐसे। नाउ दे आर नॉट बिकम स्ट्रेट। अच्छा आपने कहा ना अपोजिट, तो मैं इनके डायरेक्शन ऐसे लिख लेता हूँ, इनके भी डायरेक्शन। ऑलवेज रिमेंबर, इफ दिस इज अ सिंगल, देयर इज अ सिंगल आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट। If this charge is not single, combination of charge, the electric field lines tends to curved, right? Influence of both changes the field pattern. जल्दी से कोई बच्चा बता, मुझे बताए, अगर यहाँ पे मैं किसी टेस्ट चार्ज को रखता हूँ, ये दोनों चार्ज इक्वल है, तो यहाँ टेस्ट चार्ज कहाँ मूव करेगा? यहाँ टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, वो कहाँ मूव करेगा? जल्दी से, कोई टेस्ट चार्ज अगर यहाँ रखा हुआ है तो वो कहाँ मूव करेगा? सर कहीं नहीं करेगा, सर दोनों नहीं साइड से मूव फोर्स करेगा। लगे। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी। तो इसको ना बेटा आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, और ये दे टेंड्स टू मूव समथिंग लाइक दिस,
राइट। इसको ऐसे बना लेते हैं एंड they tends to move something like this. ओके, सो सभी को ये मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अगर मैं यहाँ पे भी टेस्ट चार्ज को रखता तो इससे इसकी डिस्टेंस और इससे इसकी डिस्टेंस इक्वल है तो भी कोई फोर्स नहीं लगता, इससे इसकी डिस्टेंस इस लाइन में कोई फोर्स नहीं लगता। बेटा इस पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट कह दिया। न्यूट्रल पॉइंट इज दैट पॉइंट, अब ये ना ऐसे होगा, बहुत ही ज्यादा नैरो होगा, ऐसा नहीं कि सारा एरिया न्यूट्रल होगा। तो मैंने एक बहुत बड़े फिगर में समझाया है, न्यूट्रल पॉइंट इज दैट पॉइंट where if you place any test charge it does not experience any force of attraction or repulsion. Neutral point is that point between some system of charges 2 3 4 where if a test charge is being placed it experiences no force. So that is called neutral point. I hope it is clear to all of you. Now let us have a look at if two negative charges are there. मैंने रब कर दिया, अगर ये दो नेगेटिव चार्ज होते तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये एरो इनसाइड हो जाते, सब में एरो इनसाइड हो जाते, क्योंकि टेस्ट चार्ज have the tendency to attract towards the negative charge. Test charge is always assumed to be positively charged, right? So now let us take two opposite charges, one positive and one negative. It is also one of the important field pattern. Anybody can tell यहाँ टेस्ट चार्ज रखा तो कहाँ मूव करेगा? जल्दी से, I will see the name who is going to tell. Sir, towards negative. Divya Pal is saying towards negative. Okay, good, good, very good. So I am representing the electric field lines by this line. Any doubt? Any doubt? No, sir. No. If I place a test charge here, where it will move? Opposite to positive, left side में sir. ठीक है. If I place the test charge here, Left. where it will? Towards Right. negative. Towards Sir, negative. towards Towards negative. Towards negative. Towards negative. Very good. Very good. Very simple now. अब क्या बचा इसमें? कुछ नहीं बचा. इनको ऐसे बना लो, इनको ऐसे बना लो, ऐसे, ऐसे, और इसको ऐसे बना लो, इसको ऐसे, इसको अपोजिट, आउटवर्ड, 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 अब और इसको ऐसे बना लो, टुवर्ड्स, 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 और इनको ऐसे कर लो। सभी को समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न? अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है तो कैसा बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? सभी को एवरीथिंग इज इट, एवरीबॉडी इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। गुड, चलिए। अच्छा बेटा, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न तो समझ में आ गया। अब हम लोग एक पॉइंट और सीखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले मैं एक न्यूमेरिकल बताऊंगा जो बोर्ड में कभी बहुत पहले पूछा जाता था, तो ऐसे ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं, फिर भी अगर पूछ ले तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। मेरे पास एक चार्ज है जिसकी वैल्यू है +5 इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी कि 5 प्रोटोनिक चार्ज है। ये प्लस देखूंगा सबसे फास्ट आंसर कौन देगा। ये +10 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है और न्यूट्रल पॉइंट होगा या नहीं होगा, और होगा तो कितना दूर होगा इससे, लगभग लगभग कितना, कहाँ होगा न्यूट्रल पॉइंट? सर रिपीट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि एक +5 ही चार्ज है, एक +10 ही चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। मैं कह रहा हूं इन दोनों के बीच में क्या कोई न्यूट्रल पॉइंट होगा? अगर होगा तो वो किधर की तरफ होगा? यहाँ होगा, सेंटर में होगा, इधर होगा, आउटवर्ड, आउटसाइड होगा, कहाँ होगा न्यूट्रल पॉइंट? होगा या नहीं होगा? पहले तो नाम बोल देना जो बताए। सर 5 इलेक्ट्रॉन की साइड में। हाँ बोलो कनक। 5 इलेक्ट्रॉन की साइड में 5 चार्ज है। गुड गुड गुड, चलो ठीक है। देखो बेटे, सिंपल सी बात है, एक बहुत सिंपल सी बात ये है
कि अगर मैं टेस्ट चार्ज को यहां रखता हूं तो 10 वाला जो चार्ज है ना, ये बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा, ये वाला भी फोर्स लगाएगा, पर क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है इसलिए इसका लगाने वाला फोर्स ज्यादा होगा और इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसके लगाने वाला फोर्स कम होगा, तो ये चार्ज ना कहीं यहां डिस्प्लेस हो जाएगा Q नॉट, और एक पोजीशन ऐसी आएगी क्योंकि ये वाली डिस्टेंस तो बढ़ गई, इस अगर ये r है तो ये 10 माइनस आर होगी, ठीक है, ये छोटी हो जाएगी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस बढ़ गई, ये डिस्टेंस कम हो गई, ये डिस्टेंस कम हो गई, तो इसकी वजह से अब नेट फोर्स यहाँ कुछ होगा, इसकी वजह से नेट फोर्स कुछ होगा, इन दोनों की वजह से फोर्स अगर इक्वल होगा तो टेस्ट चार्ज कहीं मूव नहीं करेगा। मतलब बेटे आप सिंपल सी बात ये समझिए, क्योंकि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है इसलिए ये चार्ज ज्यादा डिस्प्लेस करेगा, यानी ज्यादा दूर आपको इससे न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट प्लस 5 चार्ज के क्लोज होगा। इस पॉइंट पर अब इसके द्वारा लगने वाला फोर्स और इसके द्वारा लगने वाला फोर्स बराबर हो गया, दो पर्सन है, वो एक किसी पेड़ को खींच रहे हैं, अगर एक पर्सन कम फोर्स से खींच रहा है, दूसरा पर्सन ज्यादा फोर्स से खींच रहा है, लेकिन जो ज्यादा फोर्स से खींच रहा था वो अगर दूर खड़ा हुआ है, यानी डिस्टेंस ज्यादा है, तो यानी आप ऐसे समझिए कि कम फोर्स वो एक्ट करेगा उस पर, और जो पहले वाला पर्सन है अगर वो उसका फोर्स चाहे कम है लेकिन वो पास खड़ा हुआ है तो वो ज्यादा फोर्स उस पर ऑफर करेगा, नेट फोर्स इक्वल रहेगा तो पेड़ कहीं भी मूव नहीं करेगा। अगर जैसे मान लो दो पर्सन है, किसी एक सेंटर से किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं, दोनों इक्वल फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, सारी बातें इक्वल है, तो जस्ट सेंटर पे दोनों की वजह से फोर्स इक्वल होगा, यानी कि अगर ये मान लो ऐसा होता, आप ऐसा समझिए कि अगर एक ई है एक दूसरा भी ई है तो जस्ट सेंटर में न्यूट्रल पॉइंट होता, लेकिन अब जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला जो फोर्स होगा इसका वैल्यू यहां जितना होगा उसका इसके द्वारा भी जो फोर्स होगा यहां पर वो इक्वल होगा, तो हमें इस पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। मुझे आप लोग सर बताइए 4 सेंटीमीटर पर आएगा। अरे किस बच्चे ने आंसर दिया? मैंने दिया है। नहीं बोलो। दिव्या पाल। दिव्या पाल 4 सेंटीमीटर पे उन्होंने आंसर दिया। चलिए बेटा हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्या सभी को मेरा क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया? जो मैंने ये बोला क्वेश्चन, वेयर इज न्यूट्रल पॉइंट, सभी को समझ में आ गया ना न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा? यस सर। ओके, कोई भी Yes, ऐसा sir. बच्चा ना हो कि जिसको अगर नहीं आ रहा तो बेटे आप मुझे तुरंत वहीं की वहीं रोक दीजिए, मैं बिल्कुल आगे नहीं बढ़ूंगा, नॉट ए सिंगल स्टूडेंट। आप ये शर्म मत करिए कि और बच्चों को आ गया मुझे नहीं आया, आप मुझे तुरंत रोकिए, चाहे मुझे मीट खत्म करने के बाद आपको 15 या 20 मिनट अलग से पढ़ाना पड़े, मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपके डाउट्स अगर आज का कोई डाउट है तो वो आज ही क्लियर होना चाहिए, आप उसको पेंडिंग नहीं रखेंगे। चलिए ठीक है, देखो मैं मान रहा हूं कि यहाँ पे इसकी वजह से लगने वाला फोर्स और यहाँ पे इसकी वजह से लगने वाला फोर्स वैल्यू निकाल लेते हैं। मैंने मान लिया इसका वैल्यू Q नॉट है, तो फोर्स ड्यू टू फर्स्ट चार्ज शुड बी इक्वल टू फोर्स ड्यू टू अनदर चार्ज, वी हैव अज्यूम फोर्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के ले लें, चलो कोई बात नहीं, उन्होंने मीडियम नहीं दिया तो एप्सिलॉन नॉट लिखो, अगर मीडियम दिया होता तो के की वैल्यू लिखते, उन्होंने कोई मीडियम का जिक्र नहीं किया तो एयर मान लो। Q1 यानी कि Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर है ना, Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, Q1 की जगह क्या लिखूंगा +5e, Q2 की जगह क्या लिखूंगा Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर तो ये है ही, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 यानी कि +10e, Q2 यानी Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर यानी 10 माइनस आर का होल स्क्वायर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q नॉट से Q नॉट कट गया, ये आया +5e अपॉन आर, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। बिल्कुल 10 माइनस आर स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर अभी नहीं काट सकते, वो तो अंडर रूट लेना पड़ेगा, ई कट गया, ये 10 माइनस आर स्क्वायर, ये 5 टू 10 हो गया, यहाँ ट्वाइस बचेगा केवल, तो 10 माइनस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, इफ यू सॉल्व इट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 20r माइनस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 0, it will come out to be minus का r square minus 20r plus 100 equal to 0, changing the sign, r square plus 20r minus 100 is equals to 0, now you have to solve it, है ना। अब इसका आप इसको ब्रेक करके सर 25 और 4 आएंगे फैक्टर, 25 हाँ और 25 और 4, गुड गुड गुड, आर स्क्वायर प्लस 25r 25 माइनस 4r माइनस 100 इज इक्वल टू 0, आर स्क्वायर आर कॉमन ले लिया, आर प्लस 25 माइनस 4 कॉमन ले लिया,
r plus 25 is equals to 0. R plus 25, r minus 4 is equals to 0. R is equals to minus 25, not possible. R is equals to 4 is the correct answer, centimeter. Very good, Divya. Clapping for you. Very good. 4 centimeter is the correct answer. ठीक है, सर हाँ बोलो. इसमें ना एक प्रॉब्लम है सर, 25 और 4 फैक्टर नहीं आ सकते क्योंकि माइनस करके 21 आएगा, 20 आना चाहिए. एक मिनट सर. 25 के बताइए क्या कहना चाह रहे हो. 25 और 4 तो 10 10 और 10 10 और सर इसकी फैक्टर 10 और 10 नहीं, वो भी नहीं आएंगे. एक मिनट मैं क्या कहना चाह रहे हो. ये बेटे मैंने क्वेश्चन रैंडमली बनाया था, अपना मेरा खुद का ओन क्वेश्चन था, तो गुड लक था, 4 सेंटीमीटर आंसर आ गया. तो क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन क्या देगा कि पहले वाले 4 से कितना दूर है, तो आप उसका आंसर देंगे कि पहले वाले 4 से 4 सेंटीमीटर दूर है. क्वेश्चन ना बड़ा स्मार्ट तरीके से बनाएगा. क्वेश्चन देगा फाइंड न्यूट्रल पॉइंट, फाइंड पोजीशन ऑफ, क्वेश्चन है इसका, न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम प्लस 10 चार्ज, फाइंड पोजीशन. तो इसका आंसर जो होगा वो 6 सेंटीमीटर का आंसर होगा. बेटे क्वेश्चन को देख लेना कि 4 मत लिख देना, यहां से 10 6 होगा, यहां से 4 होगा. ठीक है, अब किसी को कोई डाउट, आगे बढ़े. आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, आई कैन सी योर कमेंट्स. शुड वी गो अहेड. सर बताइए, हाँ बोलो. सर इसमें ना 4 की जगह पर 5 आएगा. नहीं, हाँ गलत कर गए बेटा, थोड़ा सा इसके फैक्टर नहीं होंगे. 25 में से 4 गए, 21 बचेंगे ना. ठीक है, हाँ मैं सर यही कह रही थी, 20 की मतलब 4 की जगह पर 5 आएगा बस. ठीक है, तब भी नहीं होगा. 25 का 5 में करेंगे, 125 आंसर आएगा. 20 ठीक है, तो ये सर ये मेरा इसके फैक्टर अजीब आ रहे हैं. लिसन लिसन लिसन, ये तो मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन था, बुक का क्वेश्चन नहीं था. तो आप इसको सीधे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 400 अपॉन 2, बस खत्म. इससे ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना इसमें. 400 400 बाहर आ जाएगा, 400 400 का. ठीक है, 400 रूट 2 माइनस 20 प्लस माइनस ये 2 टू 400 प्लस 400 है, तो 400 400 में बाहर आ जाएगा. 800 में से ये 400 रूट 2 आ गया आंसर. ठीक है, 1 प्लस 1 2 रूट 2, 400 बाहर आ गया अपॉन 2. बेटे बस अब इसमें माइनस साइन को ओमिट कर दो और प्लस साइन को लिख लो. ये कितना आ जाएगा, माइनस 10 प्लस माइनस 200 रूट 2. फर्स्ट कंसिडरिंग नेगेटिव साइन, देन कंसिडरिंग पॉजिटिव साइन. तो नेगेटिव साइन को कंसिडर करूंगा तो माइनस 10 माइनस 200 रूट 2, एंड पॉजिटिव साइन को कंसिडर करूंगा तो माइनस 10 प्लस 200 यानी कि 2 इंटू 1.4 यानी 28, 2.8 100 यानी 280, 280 माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक है, और ये 400 बाहर आ गया अपॉन 2a माइनस 20 माइनस 10 प्लस माइनस ये हो गया हमारा 200 रूट 2. और ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत. ये मेरा रैंडम क्वेश्चन था, मैंने खुद ही बनाया था, ऐसा कोई क्वेश्चन बुक में नहीं दिया हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, ये आ जाएगा r इज इक्वल्स टू 270 सेंटीमीटर. ये तो वैल्यू बहुत गड़बड़ आ रही है. आप बेटे बुक से एक ऐसा क्वेश्चन निकाल लेना. ठीक है, ये क्योंकि खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन था, हो सकता है मैंने जल्दी में कहीं मिस्टेक कर दी हो. मैं दोबारा देख लेता हूँ. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 20r. ओके, माइनस 2r स्क्वायर इक्वल्स टू 0. दिस इज माइनस r स्क्वायर माइनस 20r प्लस 100 0, r स्क्वायर प्लस 20r माइनस 100 0, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 400 अपॉन 2a
इट कम्स आउट टू बी माइनस, ओहो बताते नहीं एक तो बच्चे मुझे, सर 40 आएगा, 400 नहीं आएगा। बताते 40 नहीं नहीं, एक तो वही 20 ये आएगा आएगा सर। 800 है ना, 20√2। √800, और √800 में एक जीरो बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, और रूट अंदर बचेगा और 2 रह जाएगा सर, टू √2। टू है ना, तो हाँ 20√2, और ये हो जाएगा r इज इक्वल टू -10 प्लस माइनस 10√2, अब सही आएगा आंसर। r इज इक्वल टू, अब नेगेटिव साइन को तो ओमिट कर लेते हैं, पॉजिटिव साइन को लेते हैं, -10 प्लस 10√2, 10 का मतलब 1.4, 14 आ गया आंसर, -10 प्लस 1.414 ना, 0.41 है ना, 14.1 सेंटीमीटर 14 में एक गया बेटा, ये तो 4.1 4.1। सेंटीमीटर है, ठीक है ठीक है, तो दिस इज माय करेक्ट आंसर, खत्म। और इस वाले चार्ट से निकालना था, तो 10 में से 4.1 को घटा दो, ये आ जाएगा तुम्हारा 5 के 5.9 सेंटीमीटर का करेक्ट आंसर। बताओ इतनी मेहनत करनी पड़ी हमें 1.1 के पीछे ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर टू ऑल यस ऑफ यू? सर। ओके फाइन, यस सर। ओके गुड। अब मेरा टैबलेट थोड़ा हैंग हो गया है, आप लोग कमेंट मत करना, अनम्यूट होकर के बताना। और बेटे खास बात यह है कि आज मैं YouTube पे भी लाइव लूंगा, यानी कि आपकी 15-20 मिनट बाद मैं क्लास जब ऑफ कर दूंगा, तो मैं आधा घंटे बाद आप लोग दोबारा से लॉग इन करने की कोशिश करिएगा। मैं YouTube पे लाइव लूंगा आपकी क्लास, मैं गूगल क्लासरूम पे इसका सॉरी गूगल पे नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको इसका लिंक शेयर करूंगा। मतलब आज ये ट्रायल होगा यूट्यूब पे लाइव क्लास लेने का, ठीक है। और जो टाइमिंग है लाइव क्लास का, वो आप 11:15 11:15 पे आप लोग स्टार्ट हो जाएगी मेरी क्लास, तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। अगर वहां बेस्ट होता है लाइव स्ट्रीमिंग, जस्ट आज मैं एक ट्रायल लूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। देखो प्रॉपर्टीज क्या है, सिंपल है। जल्दी जल्दी से मुझे एक एक करके जल्दी आप ही लोग बताते जाइए ना। अदिति शर्मा सबसे पहली प्रॉपर्टी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है, जल्दी से अनम्यूट होकर के बताते जाइए। नहीं आता, इतनी देर नहीं है। आयुषी कुलश्रेष्ठ, Electric field line does not intersect each ठीक other. है गुड। दिव्या पाल next। तो पहली प्रॉपर्टी इन्होंने बताई, मतलब डू नॉट इंटरसेक्ट। अगर इंटरसेक्ट बेटा, इसका आपको ना रीजन बताना है कि क्या, कि अगर देखो सर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, तो इस सर पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे, और दो टेंजेंट यानी ये भी टेंजेंट है और ये भी एक टेंजेंट है, और दो टेंजेंट का मतलब ये है कि दो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब कभी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर देखो ना, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, तो इस पॉइंट पे भी टेंजेंट खींचे और इस पॉइंट पे भी, क्या कोई चार्ज एक साथ दो डायरेक्शन में जा सकता है? नहीं जा सकता। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट। नेक्स्ट, सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव। नेक्स्ट, They have डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर, ये सबसे ज्यादा याद रखना, डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर्स। तो इसका मतलब कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं कर सकती, जीरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट, टेंजेंट टू अ पॉइंट ऑन अ लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। नेक्स्ट, electric field lines are continuous curves. ठीक है। अब ध्यान दो इधर, बेटे बस आपको एक बात याद रखना है कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पास पास हैं, तो यहाँ फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा। मैं एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो, इससे दो लाइंस पास हो रही हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर होती और उतना ही बड़ा मैं यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया मानता, तो यहाँ देखो, यहाँ मान लो दो से नहीं ज्यादा कर लेते हैं, 3-4 लाइनें पास करवा लेते हैं, जबकि यहाँ एक ही लाइन पास हो रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है ना, तो फील्ड स्ट्रॉन्गर कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर होती है तो फील्ड वीकर होता है। तो आप ये पॉइंट खुद से लिख सकते हैं, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर, then the field is said to be stronger, while if the electric field lines are far away from each other, the field at that point is weaker.
इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीकर। चलो हम ऐसा एक एग्जांपल यहाँ से देख लेते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड कर लेते हैं, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है बेटे, यहाँ देखो, यहाँ अगर मैं एक छोटा सा एरिया काटता हूँ, 1 2 3 4 4 लाइनें इससे पास हो रही हैं, ठीक है, इस एरिया से, और इतना ही बड़ा एरिया अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो मुश्किल से एक लाइन होकर के जाएगी। तो एरिया वही है, दूर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम आ रही हैं, यहाँ ज्यादा है। नियर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, सॉरी, नियर टू द सोर्स चार्ज द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर बिकॉज the lines are much closer to each other. Far away from the source charge the field is weaker because the lines are away from the each other. तो दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि अगर फील्ड लाइंस पास पास होती हैं फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, दूर दूर होंगी तो फील्ड वीकर होगा। यहाँ इसी कंसेप्ट को मैंने यहाँ जब लगाया तो मैंने ये देखा कि अगर मैं पास जाऊंगा सोर्स चार्ज के तो ज्यादा लाइंस इंटरसेक्ट करती किसी एक इमेजिनरी एरिया को, उतने ही बड़े इमेजिनरी एरिया को कम लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब सोर्स चार्ज के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है और सोर्स चार्ज से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होता है। ठीक है, तो आपको ये चौथा पॉइंट लिखना था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर तो स्ट्रॉन्गर होगा, फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, अदरवाइज वीक होगा, खत्म, है ना। और ऐसे 4-5 पॉइंट्स और हैं, आप लोग सिंपल है उसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप जितने भी बच्चे गूगल मीट पे ऐड हैं वो अपना नाम लिख करके प्रेजेंट सर लिख देना कमेंट से, ताकि मेरे को पता लग जाए कि कितने बच्चे रोज मेरी लाइव क्लास ले रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं वो अपना नाम लिख करके प्रेजेंट सर जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाए कि दीज मैनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन माई लाइव क्लास। चलिए अब हम आज के जो टॉपिक मुझे पढ़ाना था मैं उस टॉपिक की तरफ आगे बढ़ता हूं। वो टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटे इंटेंसिटी क्या है कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप जो बता रहे थे ना उसका वैल्यू की ही इंटेंसिटी कहलाती है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना वो भी बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वैल्यू बताती है, फील्ड की, फील्ड के बारे में बताती है, पोटेंशियल भी फील्ड का वैल्यू बताता है, लेकिन जो इंटेंसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। तो हाउ वी कैन डिफाइन इट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एट ए पॉइंट ड्यू टू अ सोर्स चार्ज इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स which acts on a test charge divided by the magnitude of that test charge. Simple. You can write the definition from book. Electric field intensity at a point is defined as the force offered on a test charge to the magnitude of that test charge. It's called the intensity at that point. E is equals to F upon Q. Unit क्या होगी? न्यूटन पर कूलम। अब जैसा कि सर आपने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली हैं। देखिए न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट हो गई ई की। मैं डेफिनेशन फिर से पढ़ रहा हूं, ऐसा ना हो कि आप ये सोचेंगे सर लिखवा नहीं रहे। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए टेस्ट चार्ज अपॉन द टू द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट टेस्ट चार्ज। हाउ मच फोर्स डज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइंग is the intensity, is its intensity. Okay, if I talk about unit is Newton per coulomb. If I talk about dimension, जल्दी से कोई बता सकता है बिना देखे बुक में से? Dimension of E, it is represented by E. Dimension, anybody? Unmute, then tell. अरे न्यूटन की क्या होगी? MLT -2 और कूलम की क्या होगी? AT ET। अब ये तो हो जाएगा ML A-1 T-3। ठीक है, A-1। इज इट क्लियर? ये पूछा गया था एक आध बार डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड का, बच्चे गलत करते थे इसे, तो हमें ये भी याद रखना है। अच्छा, मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो था क्या है, व्हेन देयर आर n चार्जेस देन E क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे क्या होगी? फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पॉइंट P है, मुझे इस पर इंटेंसिटी निकालनी है। मेरे पास एक चार्ज Q1 है,
Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है, Q5 चार्ज है, कई सारे चार्ज है। मुझे इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है। आपने कहा सर डिस्टेंस तो बताइए, तो डिस्टेंस कैसे निकालें? देखो इसके बीच की डिस्टेंस R1, Q2 वाले पॉइंट की डिस्टेंस R2, Q3 वाले पॉइंट की डिस्टेंस R3, Q4 वाले पॉइंट की डिस्टेंस R4, Q5 वाले पॉइंट की डिस्टेंस R5। आपने कहा सर इंटेंसिटी, अच्छा बेटे इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो इसकी वैल्यू क्या होगी देखो, अगर मैं किसी पॉइंट चार्ज की वजह से निकालूं तो देखिए इसी के बाद अगर एक सेकेंड, डेटा कितना हो गया, ठीक है। इसको होल्ड करके अगर मैं पॉइंट अगर आपको बताऊं कि अगर मुझे निकालना हो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या ई लिख लो बार बार, ई एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज। बड़ा सिंपल है, एक आपके पास चार्ज है, ओ पॉइंट है प्लस क्यू चार्ज है, कुछ आर डिस्टेंस अपार्ट पर पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। आपने कहा सर टेस्ट चार्ज को लेके आओ, क्यू नॉट रखो, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। फोर्स जब यहाँ लगेगा तो आपने कहा सर इंटेंसिटी क्या होगी, यार इंटेंसिटी कुछ नहीं, फोर्स निकालो पहले, F इज टू 1/4πε0 के Q1 Q2, Q1 तो प्लस Q है, Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, R इनके बीच की डिस्टेंस। इंटेंसिटी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर का साइन लगा लो। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, अब E इज टू F अपॉन Q नॉट, Q नॉट से बेटा Q नॉट कर जाएगा, एयर मान लूं, K को हटा दूं, फॉर एयर K इज 1, ठीक है। Q अपॉन आर स्क्वायर, Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, Q नॉट से डिवाइड कर दो, Q नॉट से Q नॉट कट गया, तो E की वैल्यू क्या हो गई 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। बस यही याद रखना कि फोर्स में तो 2 बार Q आता है, यहाँ एक ही बार Q आता है जब हम इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की निकालते हैं। तो मैं यहाँ ये वाली वैल्यू भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 1/4πε0 K, लिखो मत लिखो, Q बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो आपको सबसे पहले इंटेंसिटी की डेफिनेशन लिखनी है, फॉर्मूला लिखना है, यूनिट लिखनी है, यूनिट न्यूटन पर कूलम, डायमेंशन लिखना है। एक पॉइंट की वजह से, एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी चार्ज की वजह से इंटेंसिटी, बड़ा सिंपल है, 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। कई सारे पॉइंट चार्जेस हों तब क्या करेंगे, एन नहीं इनफाइनाइट चार्जेस है, मतलब एन चार्जेस हैं, 5 पॉइंट नहीं, कई सारे चार्जेस हैं, तो आप क्या करोगे कि जो इंटेंसिटी होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, दिस इज द वेक्टर सम ऑफ the intensities due to all points, vector sum of intensities due to all points, so on plus n points हैं। अच्छा आप ये कहोगे सर वेक्टर कह रहे थे ना आप, तो वेक्टर कैसे हटाएं, वेक्टर ऐसे हटाएंगे, मैं यहाँ पे ना बेटे आर कैप का मल्टीप्लाई कर दूंगा, आर कैप, और आर कैप लगा दिया, ये मैग्नीट्यूड था सारा, ये वेक्टर यूनिट वेक्टर हो गया, तो ये पूरा वेक्टर साइन बन गया। अब इसको समझाएं कैसे, बस आप इतना लिख दो, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अलोंग ओपी, बस खत्म, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग ओपी। यहाँ लिखना पड़ेगा ना कि किस डायरेक्शन में है, आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर व्हिच पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ओपी, वेयर आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर, वेयर आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग अलोंग ओपी। खत्म। पहले मुझे बताओ भाई, सभी लोग अनम्यूट होकर के बताना कि सभी को समझ में आ गया, ऐसा तो नहीं कोई किसी को डाउट हो, टेल मी, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर आप एक और बार बता दो इसे। बिल्कुल, कितनी अच्छी बात कही यामिनी ने। देखो समझो, किसी भी भाई इंटेंसिटी, धूप में खड़े हुए हैं, इंटेंसिटी ज्यादा है कम है, बहुत तेज धूप है इंटेंसिटी ज्यादा है, छाव में है इंटेंसिटी बहुत कम है, यानी कि उसकी वैल्यू ही तो बतानी है ना। अब वैल्यू सर जितना दूर खड़े होंगे इंटेंसिटी उतनी कम होगी, जितना पास खड़े होंगे इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। आप सन आज क्या कहते हैं ना, धूप बहुत तेज है भाई, सन गॉड इज वेरी नियर टू अस, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बहुत पास है तो इंटेंसिटी ज्यादा है, दूर है तो इंटेंसिटी कम है। मॉर्निंग में सन गॉड बहुत दूर होते हैं, धूप नहीं लगती, इंटेंसिटी बहुत कम होती है, हम धूप में भी खड़े होते हैं तो हमें महसूस नहीं होता। तो वो वैल्यू पता करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ही उसकी इंटेंसिटी कहलाती है।
बस एक पॉइंट है कि सर ये ना वेक्टर क्वांटिटी है इंटेंसिटी, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना वो भी फील्ड का वैल्यू बताता है, पर वो स्केलर क्वांटिटी है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं कि भाई आप पर कितना फोर्स लग रहा है अपॉन, मतलब किसी टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है अपॉन उस टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड, वो बताएगा कि किसी पर्टिकुलर चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। अब सब दोबारा समझ लो भाई, एक छोटा सा पॉइंट है, यहाँ मेरे पास कोई चार्ज रखा हुआ है क्यू, मैंने कहा मुझे पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बताओ, आपने कहा सर देखो यहाँ पर आपने एक टेस्ट चार्ज रख दो क्यू नॉट, उस पर फोर्स निकाल लो कितना लग रहा है, जो फोर्स आए ना उसको उस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो बस, तो आपको ई निकल के आ जाएगा, और ई वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन क्या होगा, इसको इसने इस डायरेक्शन में धक्का लगाया ना, तो ये डायरेक्शन ही ओपी डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, बस यही है। तो E इक्वल्स टू F अपॉन Q, आपने कहा फोर्स कितना, कूलम लॉ 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q2 ये था कट गया, 1/4πε0 K Q बाय R स्क्वायर, यूनिट न्यूटन कूलम पर में, डायमेंशन बहुत सिंपल, अभी सॉल्व करके बताया। यामिनी इसमें कोई दिक्कत, यामिनी इसमें कोई दिक्कत पहले बताओ मुझे, यस और नो जल्दी से, नो ये वाला समझ में नहीं आया। अगर एक चार्ज है, मतलब दो चार्ज हैं, एक तो ले लेंगे ना दो, मतलब आपके पास कोई एक सोर्स चार्ज है, दूसरा टेस्ट चार्ज है, एक चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, दूसरे की वजह से भी होगी, तीसरे की वजह से भी होगी, सारे पॉइंट मिलकर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बनाएंगे। सन गॉड आज एक ही है ना, सूर्यदेव, ठीक है, अगर दूसरे होते किसी दूसरे डायरेक्शन में, तीसरे चौथे पांचवे छठवे, और आप खड़े हुए तो कितनी धूप भर जाती, इंटेंसिटी उतनी ज्यादा भरती, यानी जितने सोर्स चार्ज होंगे उतनी किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, सबकी वजह से ऐड कर लो, पहले वाले की वजह से, दूसरे वाले की वजह से, तीसरे वाले की वजह से, सबकी वजह से ऐड करिए ना किसी पॉइंट पर। बस यहाँ एक कंडीशन ये है कि आपको डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ही ऐड नहीं करना, डायरेक्शन भी ऐड करना है उसका, यानी वेक्टर सम लेना है आपको, वेक्टर सम लेना है। तो वेक्टर सम क्या, पहले वाले की वजह से, दूसरे वाले की वजह से, तीसरे वाले, सबकी वजह से E1 E2 E3 E4 En, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ गई कई सारे चार्जेस की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर। इज इट क्लियर नाउ, इज इट क्लियर नाउ, जल्दी बताइए। यस सर। ओके फाइन, जस्ट वेट, दो बच्चे लेफ्ट हो चुके हैं मीट से, दिस इज वेरी रॉन्ग, और आई होप यू हैव ऑल हैव रिटन योर नेम एंड प्रेजेंट सर, है ना, आप लोग लिख चुके होंगे। तो अब वैल्यू तो लिख लो, इनकी क्या है वैल्यू में, सर 1/4πε0 को कॉमन ले लो, ठीक है, Q पता नहीं, पहला वाला चार्ज Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, Q3 डॉट 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 Qn अपॉन Rn स्क्वायर। मैंने कहा अच्छा नहीं लग रहा है ये, तो इसको डिस्क्रीट सम लिखें, K लिखना चाहो लिख लो, तुम्हारा मन है। मैंने कहा E वेक्टर सम ड्यू टू ऑल चार्जेस इज इक्वल टू 1/4πε0 K, समेशन कर लो इनका, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n QI अपॉन RI स्क्वायर, खत्म, बस यही था। यहाँ I यानी 1 2 3 4 डॉट डॉट सो ऑन, समेशन है ना ये, पहली बार दूसरी बार तीसरी बार, RI यानी R1 R2 R3। जल्दी से बताइए, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर? यस सर। गुड, चलो आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, या एक काम करें, इसके आगे की क्लास में यूट्यूब पे ट्रायल लूंगा 15-20 मिनट, है ना, आप लोग लॉग आउट हो जाइएगा, और यानी कि मैं 11 बज गए हैं, 15 मिनट बाद मैं यूट्यूब पे लाइव लूंगा क्लास, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर वहां देखेंगे वहां कैसा रहता है, ठीक है बच्चों, थैंक यू। सर एक चीज बता दीजिए,